God is good and all the time. पता नहीं इन लोग दोनों ने क्या पाप किया भाई. Sorry, if light goes off, then he'll be on me then. I better be careful. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. Very good. Let's take a Bible to the book of Ecclesiastes today. इस समय हम अपने बाइबल को सोपदेशक में हम जाएंगे And we are going to study a very important subject. आज हम बहुत ही खास विषय को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. I will just talk to you today and try to help you in your walk with the Lord. और मैं आप सभी के साथ बताऊंगा और आप सभी को मैं मदद करना चाहूंगा ताकि आप सभी लोग परमेश्वर के साथ साथ चल सके. Amen. Amen. Book of Ecclesiastes is very powerful book. और सोपदेशक जो किताब है बहुत ही सामर्थ्यशाली किताब है. And if you are not able to find, see, I also committed sin. If you are not able to find the book of Ecclesiastes, go straight to the book of Psalms. अगर आप इस समय ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप भजन संगीत में पहले जाइए सभी लोग. And then from the book of Psalms, go towards the New Testament. After the book of Psalms, you will get Proverbs. और भजन संगीत के बाद आपको नीति वचन को मिलेगा. And then after the book of Proverbs is the book of Ecclesiastes. और उसके बाद ही आपको तुरंत जो किताब से हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वही किताब आपको मिल जाएंगे. We have candles on the table. That does not mean we are Roman Catholics. We are Bible believing Christians. आगे हमने मोमबत्ती रखा है इसका मतलब ये नहीं कि हम कैथलिक हैं, हम बाइबल को विश्वास करने वाले लोग हैं. The reason why we have candles is because we have no power today. तो आज मोमबत्ती यहाँ पे इसलिए रखा गया कि आज क्योंकि करंट नहीं है. Well, we have the power of God upon us. लेकिन हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है. It's just that we do not have power of electricity लेकिन today. इलेक्ट्रिसिटी का कोई यहाँ पे पावर नहीं है. But we thank God that we can still continue to study God's word today. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम फिर भी परमेश्वर की वचनों का हम अध्ययन कर सकते हैं. So book of Ecclesiastes, and this will be an encouragement to a lot of young people. So I would encourage you to listen to me very intently. और मैं चाहता हूँ सभी लोग, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए मददगार होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग ध्यान से सुनिए. And I believe anyone watching online or anyone over here right now in our church hall, everyone believes that they are young people. और मैं यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद है, बैठे हुए हैं और जो इस समय देख रहे हैं, सभी लोग को लगता है कि हम जवान हैं मसीह में. And so the Bible says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. और वचन कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर अपेक्षा करते हैं, उन लोग अपने सामर्थ को वापस से पाएंगे. So book of Ecclesiastes, we are going to look at 2 chapters today, and from that 2 chapters, couple of verses. तो आज हम सोपदेशक से हम आज 2 अध्याय को आज हम मनन करेंगे. And from Ecclesiastes chapter 11, verse number 9. और सोपदेशक से हम अध्याय 11 वचन 9 को आज हम देखेंगे. 9, 10. 9 और 10. And then chapter number 12, verse number 1. और अध्याय 12 आयत नंबर 1 को हम आज देखेंगे. And from these 2 chapters, I would like to bring God's word to all those who are listening today. और ये 2 अध्याय से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जितने सारे लोग इस समय हमें सुन रहे हैं. And so if you are a young person who is not married, this is very much going to be very helpful to you. अगर आप जवान हैं, शादीशुदा नहीं है, तो ये आप सभी के लिए मददगार होने वाले हैं. If you are parent, this will help you to help your children in their walk with the Lord. अगर आप माँ या फिर बाप है तो आपको बच्चों को सिखाने में बहुत ही मददगार होंगे. And so I want you to look at Ecclesiastes chapter 11 and verse number 9 and 10, and then chapter 12 verse number 1. तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपनी बाइबल खोल के इस समय आप देख सकते हैं सोपदेशक में अध्याय 11 वचन 9 और 10 और अध्याय 12 और वचन 1 से हम देखेंगे. All right, since the light is come, let's go to chapter number 12 verse number 1. तो जैसे अभी करण आ चुके हैं, इस समय हम अध्याय 12 वचन 1 में हम इस समय देखेंगे. Ecclesiastes chapter 12 verse number 1 says, remember. और यहाँ पे सोपदेशक का अध्याय 12 वचन 1 में कहता है कि याद करो. So today you need to think one thing in your mind. Okay, for the rest of my life, I'm going to remember
this message. तो आज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कि आने वाले मेरे जीवन में मुझे ये जो वचन है इसको मुझे याद करके रखना चाहिए। Forgetfulness can cause many heartaches in your life. अगर आप भूल जाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को ला सकते हैं। If you forget today's message, it may bring many sorrows into your life. अगर आज के वचन को आज आप भूल जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही दुख आ सकते हैं। I remember when I was a little boy studying in a boarding school. मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में स्टडी कर रहा था, and we were supposed to go to the boarding school from home during the holidays. और हमें याद है कि हमें घर से हमें स्कूल को जाना चाहिए था उस समय। So we packed up our suitcase and everything is ready. We are now and we started going to school on the bus. तो इस समय हम हमारे कपड़ा वगैरह सब कुछ हम पैक करके इस समय हम बस की ओर जा रहे थे। And we reached to the boarding school. और हम अपने स्कूल में हम पहुंचे। And when we reached the boarding school, we did all the admissions and everything has been done, and we went to our dormitory. जब हमने स्कूल को गया तो सब कुछ होने के बाद हम वहां पर जाकर हमने प्रस्तुत किया अपने आप को। And when we went to the dormitory, we saw that जब हमने डॉर्मेटरी में जाकर वहां पे देखा, we were checking for our key and there was no key in the pocket. और हमने अपने चाबी को हम ढूंढने लगे और वहां पे हमने देखा कि हमारे जेब में चाबी ही नहीं है। And my mom had already left and went back home. और मेरी मम्मी पहले से वो वापस जा चुकी थी अपने घर पे। And so now we do not know what to do. और अभी इस समय हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है अभी। And so now we need the key to open the suitcase. तो इस समय हमें हमारी बैग को खोलने के लिए चाबी चाहिए रहता है। And mom has already gone home. और हमारी जो माँ है वो पहले से जा चुकी थी घर को। And it was really sorrowful because we had forgotten our key at home. ये बहुत ही दुख की बात थी क्योंकि हमने अपने चाबी को घर पे भुलाया। We didn't remember that we were supposed to carry our key in our pocket. हमें उस समय ध्यान में नहीं था कि हमारे चाबी को हमें जेब में रखना चाहिए क्या। We had forgotten. उस समय हम भूल गए। And in the same way, dear friend, forgetting to remember the most important things in our life can bring many sorrows in life. इसलिए मेरे प्रिय, जो चीज हमें याद करना चाहिए, अगर उन सब चीजों को अगर हम भूलते हैं तो यह हमारे जीवन में बहुत ही दुख को ला सकते हैं। And so God says, remember. तो परमेश्वर हमसे कहता है कि याद करो। When should I remember? कब मुझे याद करना है? Not when I become old. जब मैं ओल्ड बन जाऊंगा उस समय मुझे याद नहीं करना है। You need to remember now. आपको इस समय अभी इसी वक्त आपको याद करना है। Now when you are young. जब इस समय अभी जवान है उस समय। Now when you are in your youthfulness. और आपके जवानता में आपको इस समय याद There करना is है। something that you need to remember now. ऐसा एक चीज है जो आपको इस समय याद करना है। The Bible says परमेश्वर के वचन बताते हैं there are many things you may remember. शायद आप बहुत सारी चीजों को याद करेंगे, But the most important thing that you need to remember is your Creator. लेकिन उससे भी सबसे अधिक जरूरी है आपको याद करना है आपके सृष्टिकर्ता को। Who is your Creator? आपके सृष्टिकर्ता कौन है? Do you know Him? क्या आपको पता है वो कौन है? Do you have a personal relationship with your Creator? क्या आपके पास व्यक्तिगत कुछ संबंध है वो आपके सृष्टिकर्ता के The साथ? Bible says in John chapter 1 verse number 1. और परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं यूहन्ना 1 में, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Verse number 2 says, and all things were created by Him, and without Him nothing was created. और वचन 2 में हम देखते हैं सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया है। Colossians chapter 1 verse number 14 says, 14 and 15, that the Lord Jesus Christ created the whole universe and the earth for His glory. और हम देखते हैं कुलुस्से के पुस्तक में अध्याय 1 और वचन 14 और 15 में हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने पूरा विश्व को अपने महिमा के लिए सृष्टि की है। We come to understand that Jesus Christ is the creator. हम समझते हैं यहाँ पे कि हम यीशु मसीह सृष्टि करता है। And so the Bible makes it very clear that you and I are supposed to remember our Creator. और बाइबल हमें स्पष्ट से बताते हैं कि हमें अपने सृष्टिकर्ता को याद करना है। So the first thing is, if you need to remember your Creator in life. तो पहली चीज आपको याद करना है वो है कि सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में आपको याद करना है।
The second most important thing is you need to find who is the creator. और दूसरी जो सबसे अद्भुत है वो आपको याद करना कि आपकी सृष्टिकर्ता कौन है। If you just remember anybody as your creator, then you will lie in sorrow all your life. अगर आप किसी को भी अपने सृष्टिकर्ता मानकर अगर याद करते हैं तो पूरे जीवन आप दुखी में बिताएंगे। The Bible says the Lord Jesus Christ is the creator. और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। So when you are young and when you are in your youthfulness, when you are energetic and strong, the Bible says, remember now thy creator. जब आप जवान होते हैं, जब आप सब कुछ कर पाते हैं, उसी समय आपको वचन बताता है कि आपको इसी समय आपको परमेश्वर को याद करना है। A lot of people say, well, right now I will enjoy my life how I want. When I will become old, I will remember God. बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे पास इस समय सामर्थ्य है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस समय मैं आनंदित बना हुआ, जब समय होगा उस समय मैं परमेश्वर को याद करूंगा। But when that old life comes and you have no strength to do anything for God. लेकिन बुढ़ापन में आप उस समय आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं रहते हैं और उस समय आप याद नहीं कर पाएंगे। Because when you were young, you lived a life of lust and sin, and then your flesh begins to reap the fruit of sin. जब आप इस समय जवान के समय आप क्या होता है, अभिलाषाओं में पाप में आप जीते हैं और पाप का फल आप पैदा करते हैं उस समय। And when the fruit of flesh comes, which is sin, brings sickness and sorrow and all kind of problems in our life. और क्या होता है, पाप की वजह से जो पाप आप करते हैं उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे कठिनाई आते हैं, समस्याएं आते हैं, रोग बीमार आते हैं। So when you say, when I become old, I will remember God, then you will have no strength. And you will have Alzheimer's, you will forget to remember God. और अगर आप कहते हैं जब मेरा उम्र हो जाएगा उस समय परमेश्वर को याद करूंगा, उस समय क्या हो जाएंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे, भूलने के बीमार हो जाएंगे आपके जीवन में। So it is not tomorrow that you are supposed to remember the Creator, but you are called to remember thy Creator now. कल को आपको परमेश्वर को याद नहीं करना है, लेकिन आपको कहा गया अभी याद करने के लिए इस समय। Not today, but right now. आज नहीं, लेकिन अभी के अभी आपको याद करना है। Because today can be 12 hours later also. क्योंकि आज जो है वो 12 घंटे के बाद भी हो सकता है। Or today can be 7 hours later, and we do not know what's going to happen 2 hours from now. तो आज इसका मतलब ये भी हो सकता है 7 घंटे के बाद, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या होने वाला आपको नहीं मालूम है। So God says, remember the Creator now. तो इसलिए परमेश्वर की वचन हमें कहता है कि हमारे सृष्टिकर्ता के इसी समय हमें याद करना है। Now is the day of salvation. और अभी जो है उद्धार का दिन है। Now is the accepted time. और यही ग्रहण करने की समय है। Now when God is reminding you to remember Him. इस समय जो परमेश्वर आपको याद दे रहा है अपने आप को वो याद करने के लिए। So today if you are present here and listening to me online, now is the time that you begin to remember thy Creator. इस समय जितने सारे यहाँ पे उपस्थित जितने सारे लोग हमें इस समय देख रहे हैं, तो आपकी ये समय है कि इसी समय आपको परमेश्वर को याद करना है। And if you remember thy Creator, you better understand who your Creator is. तो अगर आपको याद करना है कि आपके सृजनहार कौन है, And the Bible makes it very clear, no one is the Creator but the Lord Jesus Christ. लेकिन बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट प्रकार से हमें बताते हैं कि कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह। Jesus Christ is the Creator. यीशु मसीह सृजनहार है। So I need to remember my Creator now. तो इसी समय मुझे अपने सृजनहार को याद करना है। The Bible says, remember now their Creator in the days of thy youth. तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। Who is the youth? यहाँ पे जवान लोग कौन हैं? Anyone after 12 years old is youth today. और जो कोई 12 साल के बाद वो लोग जवान हैं। Who is energetic, जो पूरे सामर्थ में हमेशा who बने is रहते हैं, strong, जो बहुत ही शक्तिशाली who है, has desires and ambitions in life, जिसके पास इच्छाएं हैं, जिसके पास आशाएं हैं, who wants to fall in love, जो प्यार में गिरना चाहते हैं, who wants to accomplish many things in और life, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, who wants to explore this wonderful world, और इस संसार को उन लोग अद्भुत तरीके से प्रकाश करना चाहते हैं, who has the strength to do many things. और उन लोग के पास बहुत सामर्थ्य रहते हैं बहुत कुछ करने के लिए। The Bible says they are youth. और बाइबल बताते हैं कि उन लोग जवान हैं। Because God wants you to use all that you have now for His glory. क्योंकि परमेश्वर इस समय चाहता है जो कुछ अपने आपके पास से सामर्थ को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। There are two people that are fighting right now to have you. और हम इस समय देखते हैं ऐसे दो
दो जन है जो आपको पाने के लिए उन लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। God wants you to follow Him with all your heart, with all your might, and with all your strength. परमेश्वर चाहते ताकि आप परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे बुद्धि से परमेश्वर की अनुसरण करें। But the devil also wants you to reject God and follow the devil and do the devil's work and live in sin. लेकिन शैतान भी यह चाहता था कि आप परमेश्वर को छोड़कर शैतान को ताकि अनुसरण करें और जो कुछ शैतान चाहता था कि आप उन सब चीजों को करें। And so a lot of people in the days of their youth, they reject God. और बहुत सारे लोग जवान के समय में उन लोग परमेश्वर को इनकार कर देते हैं। They go to school and college and university and they begin to think they are too smart. और जब लोग स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, उन समय अपने आप को लोग लगता है कि उन लोग बहुत ही स्मार्ट हैं। Then they say, there is no God. Man came from monkey. और लोग कहेंगे कि नहीं कोई भगवान नहीं है, लेकिन सब मनुष्य बंदर से आया है। But you tell them, तेरा बाप monkey, they'll get angry. अगर आप उन लोगों को कहेंगे कि तुम्हारा जो पिता है वो बंदर है, तो उन लोग गुस्सा हो जाएंगे उस समय। Or you call them to be monkey, they get angry. अगर उन लोगों को आप बंदर कहेंगे, उन लोग भी गुस्सा हो जाएंगे उस समय। Because you call a monkey to be a monkey, monkey will never get angry. अगर आप बंदर को बंदर कह के पुकारेंगे तो बंदर को कोई गुस्सा नहीं होगा। But if you call a man as a monkey, he'll get angry. लेकिन एक मनुष्य को अगर आप पुकारते हैं बंदर कह के, तो उन लोगों को गुस्सा आएगा। Because man did not come from monkey. कि जो मनुष्य है वो बंदर से आया नहीं। God created man when He created man. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया। But today the devil wants to ruin your life and pull you away from the truth. लेकिन आज शैतान क्या करना चाहते हैं और आपको सत्य से वो बाहर लेके जाना चाहते हैं। And so when you go to college and university, a lot of doubts will begin to come in your जब mind. स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, आपके मन में बहुत सारे संदेह पैदा होने लगता है। And the devil begins to give you many lusts, and then you fall into sinful lust. और शैतान आपके जीवन में बहुत सी अभिलाषाओं को देता है और आप पाप कर बैठते हैं। And then smoking and drinking and doing drugs and fornicating becomes a lifestyle. और आप उस समय सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से गंदे गंदे कामों को उस समय आप करते हैं। And instead of repenting, you become more guilty and you want to go far away from God. और पश्चाताप करने के बजाय आप क्या करते हैं? परमेश्वर से आप बहुत ही दूर चले जाते हैं। And like Adam and Eve, you will try to hide from God. और हम देखते हैं आदम और हव्वा उन लोग परमेश्वर से छिपना चाह रहे थे। And so people, instead of running to God and say, oh God, I messed up my life, they say, oh, I messed up my life, God will be angry, so you run away from God. लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग को परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगना, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। So a lot of people, young people, instead of running towards God when they committed sin, they ran away from तो God. बहुत सारे जवान लोग परमेश्वर के पास जाने के बजाय लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं भागकर। God is still in the business of forgiving everybody. परमेश्वर आज भी सबों को माफ करना चाहते हैं। Anybody that will come with a repentant heart to God and say, oh God, I'm sorry, God will forgive immediately. जो कोई अभी इसी समय पश्चाताप की हृदय को लेकर परमेश्वर के पास जाकर उन्हें पश्चाताप को मांगेंगे, तो परमेश्वर उसी समय उनको क्षमा करेंगे। But sadly, instead of running towards the direction of God, today young people are running away from God because they messed up their life. लेकिन दुखी की बात यह है कि उन लोग परमेश्वर के पास जाने के बजाय उन लोग परमेश्वर से बहुत ही अलग और दूर चले जाते And हैं। it is very important for parents to remind their children, no matter what you do, run to God and ask for forgiveness. और ये माँ बाप की बहुत ही एक फर्ज बन जाते हैं अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए, आप चाहे जो भी कुछ करें अपने जीवन में, आपको परमेश्वर के पास जाना है। Our God is a loving God and a forgiving God. आपको जानना है कि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर The है। devil wants you to feel guilty and stay away from God. और शैतान चाहते था कि आप अंदर ही अंदर दुखी फील करें और परमेश्वर से दूर चले जाएं। And the devil will tell you, oh, you are a very wicked sinner. God hates you. God doesn't love you anymore. And if you go to God, He's going to destroy your life. So run away from और God. शैतान आपसे कहेंगे कि आप बहुत ही दुष्ट या बहुत ही पापी हैं, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता है, वो आपसे गुस्सा है। You know what? उस समय आप बहुत ही दूर चले जाएंगे उस समय। And that is what the devil wants you to do. और वही आज शैतान चाहते था कि आप उन सब चीजों को करें। But God is saying, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. लेकिन परमेश्वर आपसे आज कहता है कि सारे जो दबे हुए हैं, बहुत से दबे हुए हैं, सभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। And the Bible says, remember now
और thy creator in the days of thy youth. बाइबल हमें बताते हैं अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रखें। Whatever you have done, dear friend, God says today, now remember God. मेरे प्रिय, जो कुछ भी आपने किया है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बताता कि इसी समय आपको अपने सृजनहार की स्मरण करना है। How wonderful it is today, so many young people are sitting in our church right now. बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में जवान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। But there will be time, dear friend, that you will come under testings in life. लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा आपके जीवन में ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। Right now you may love God and love His word. इस समय आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचनों से प्यार करते हैं। And the Bible says, remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not. परमेश्वर के वचन कहते हैं अपने जवानों के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रखे, इससे पहले कि विपत्ति दिन आए। Nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। Today you are strong and healthy. आज आप बहुत ही हेल्दी हैं। Remember God. तो परमेश्वर को याद करो। Today when you have time, आज जो आपके पास समय है, remember God. परमेश्वर को याद करो। Today when you have desires, जो आपके पास इच्छाएं हैं, remember God. परमेश्वर को याद करो। Today when your heart bubbles with love and affections, जब आपकी जो हृदय परमेश्वर की ओर प्यार करते हुए उछलता है, remember God. परमेश्वर को याद करो। When your physical body is healthy without sickness, जब आपकी शरीर बहुत ही तंदुरुस्त है बिना कोई बीमार के, remember God. परमेश्वर को याद करो। When you don't have to worry about world and finance and problems, जब आपको पैसों के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में कोई चिंतित करने की जरूरत नहीं है, remember God. परमेश्वर को याद करो। Because there is a time that's going to come क्योंकि ऐसा समय आने वाला है when remembering God will be difficult. कि जब आप परमेश्वर को याद करने के लिए आपको बहुत ही तकलीफ होंगी। Because sickness may come, क्योंकि शायद उस समय आपके जीवन में बीमार आएंगे, financial problems may come, आर्थिक समस्याएं आ सकते हैं, evil may come in your life. और बहुत से दुष्ट चीजें आपके जीवन में आएंगी। But if you remember now thy Creator, लेकिन इस समय अगर आपके सृजनहार को अगर आप याद करते हैं, today if you will invest your life in your Creator, अगर अपने जीवन को परमेश्वर में आप इस समय इन्वेस्ट करते हैं, today if you will live your life for the Lord Jesus अगर आज Christ, आप यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, tomorrow when days of evil comes, कल को जब दुष्ट के दिन आएंगे, the Lord will take care of you. तो परमेश्वर आपको संभालेगा, The Lord will sustain your life. और परमेश्वर आपको संभालेगा, रक्षा The करेगा। Lord will heal you from your sickness. और आपकी हर एक रोग बीमार से आपको परमेश्वर चंगा देगा। The Lord will uplift you when you fall. जब आप गिरते हैं, परमेश्वर आपको उठाएंगे। The Lord will meet you where you are fallen. जहाँ पे आप गिरे हो, यहाँ पे परमेश्वर आपसे मिलेंगे, The Lord will lift you up. और परमेश्वर आपको उठाएंगे। The Lord will provide your needs. हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। Because now you need to remember. कि इस समय आपको परमेश्वर को याद करना But है। if you will stop remembering God now, लेकिन इस समय अगर आप परमेश्वर की याद करना बंद कर and if देंगे, you will go away far from God, अगर आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे, and if you will live the way that you want to live, अगर आप जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से अगर आप जीते हैं, and you fornicate and sin and live a life of lust, अगर आप गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप में गिरते हैं, God will be waiting, but you will be far away from Him. परमेश्वर शायद उस समय अपेक्षा करे रहेंगे, लेकिन आप उस समय परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। The Bible says, remember now. परमेश्वर के वचन बताते हैं कि हमें इस समय हमें परमेश्वर की याद करना है। What does remember means? याद करना मतलब क्या है? Remember means understand the truth. याद करना मतलब सच्चाई को समझना, Understand that the Lord Jesus Christ is the one true God. समझना कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। What does remember means? स्मरण करना मतलब क्या है? Remember means draw nigh to God. स्मरण करना मतलब परमेश्वर की ओर निकट जाना। What does remember means? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Remember means abide in Christ. स्मरण करना मतलब परमेश्वर के साथ बने रहना। What does remember mean? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Remember means call upon the Lord. स्मरण करना मतलब परमेश्वर को पुकारना होता है। What does remember mean? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Remember means worship your Creator. स्मरण करना मतलब परमेश्वर की इबादत करना होता है। What does remember mean? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Praise His holy name all the time. परमेश्वर के नामों की स्तुति करो हमेशा। What does remember mean? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Confess your sins to Him when you sin. आपकी पाप के पश्चाताप करो जो आप पाप करते हैं। What does remember means? और स्मरण करना मतलब क्या होता है? Meditate upon His word. और परमेश्वर के वचन में ध्यान करना। What does remember mean? स्मरण करना मतलब क्या होता है? Remember means share the good news to others. स्मरण करना मतलब हर एक अच्छाई को लोगों से बांटना होता है। When do I do it?
कहाँ पे मैं करूंगा ये सब? Do I do it tomorrow? क्या मैं कल को करूंगा? Do I do it when I will have more money? क्या मेरे पास जब ज्यादा पैसे होंगे उस समय मैं करूंगा? Or when I will have a better house? जब मेरे पास अच्छा घर होंगे, When I get a better job? जब मेरे पास अच्छा काम When होंगे, I finish my schools and मेरे colleges? कॉलेज को मैं खत्म करूंगा उस समय? No! नहीं, Remember now. इसी समय स्मरण करो, Remember now. स्मरण इसी समय करें। Use your time and your talent and your treasure and your strength now. आपकी गुण को, आपके समय को, आपकी हर एक चीजों को इसी समय आप याद करते हुए स्मरण करो So परमेश्वर। what do I do? तो मैं क्या करूंगा? How do I remember Him? किस प्रकार से मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूँ? God's word says, remember rejoicingly. परमेश्वर की वचन कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की स्मरण करो। I don't think anybody comes to church because, oh, I need to go to church. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कलीसिया का होता है क्योंकि हाँ मुझे कलीसिया को जाना है इसलिए। I think you were expecting to come today for a long time from morning. लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि आज सुबह से बहुत सारे समय से आप आशा रखने कि मैं जाऊंगा कलीसिया। I believe you were anticipating for the time to come so you can get out of your house and come in the house of the Lord to worship मैं Him. विश्वास करता हूँ आप समय को आप उस समय अपेक्षा करते हैं कब समय आएगा और मैं जाकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। I believe right now you have come rejoicing and remembering मैं Him. विश्वास करता हूँ इस समय आप खुश के साथ इस समय यहाँ पर आए हैं। So God's word says, remember rejoicingly. तो परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की स्मरण करो पूरे आनंद के साथ। We're not supposed to remember because somebody is pushing us. क्योंकि हमें कोई धक्का दे रहा है इसलिए हमें याद नहीं करना है। We're not supposed to remember because somebody is forcing us. क्योंकि हमें कोई दबाव में डाल रहा है इसलिए हमें याद करना है। We are remembering rejoicingly. लेकिन हम याद कर रहे हैं क्योंकि हम आनंद के साथ परमेश्वर की We स्मरण need कर to रहे हैं। remember God because we want to remember हमें Him. परमेश्वर की स्मरण करना है क्योंकि हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। We need to remember God because we love Him. हमें परमेश्वर को स्मरण करना है क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। Rejoice, O young man, the Bible says. परमेश्वर के वचन कहता है हरे जवान लोग तुम लोग आनंदित करो। Rejoice, O young man, in thy youth, the Bible says in verse number 9 of chapter 11. हे जवान अपने जवानी में आनंद करो। This is the best time to rejoice. और ये सबसे अच्छे समय है आनंद करने के। There are a lot of people rejoicing. आज भी बहुत से लोग आनंद मनाते हैं। There are young people rejoicing because they are smoking weed. और बहुत से जवान लोग क्योंकि वो लोग सिगरेट को पीते इसलिए उन लोग आनंदित मनाते There are हैं। some rejoicing with beer and alcohol. बहुत से लोग दारू पीकर उन लोग आनंदित मनाते हैं। There are some rejoicing with drugs and hiding और themselves. बहुत से लोग ड्रग्स लेकर उन लोग छिपकर उन लोग आनंदित को मना रहे हैं। There are some rejoicing by fornicating and committing adultery. और उन लोग इस समय व्यभिचार करने में आनंद को मना रहे हैं। That is not how you rejoice. लेकिन उस प्रकार से उस रीति से हमें आनंदित नहीं मनाना है। Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। Sin will destroy you. पाप आपको नष्ट कर देगा। Sin will take away the joy of your life. और जो पाप है वो आपके जीवन से आनंद को हटा Sin देंगे। will put a guilt trap in you. और जो पाप है आपके जीवन में फंदा को डाल देंगे। And so God says, don't waste your life over there. परमेश्वर कहता है आपके जीवन को वहाँ पे व्यतीत मत करो। Now, इसी समय when you're young, जब आप जवान हैं, when you're जब energetic, आपके पास सामर्थ्य है, when you have more time, जब आपके पास बहुत ज्यादा समय है, when you're single, जब आप उस समय सिंगल हैं, when you have no much tension, जब आपके पास बहुत सारे टेंशन में रहते हैं, rejoice in thy youth. The और आपके Bible जवान says. में आनंदित मनाओ परमेश्वर वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Rejoicing is not sin. और आनंदित मनाना वो पाप नहीं है। Rejoicing is rejoicing. आनंदित मनाना मतलब आनंदित मनाना होता है। Rejoicing is joyful thing. और आनंदित हमें खुशियों के साथ मनाना है। And this is the time we rejoice in the और Lord. यही समय जहाँ हम परमेश्वर में आनंदित मनाते हैं। When we play sport, we need to do it for the Lord. जहाँ हम कुछ करते हैं हमें परमेश्वर की महिमा के लिए We करना go है। to school and college, we do it for the Lord. जहाँ हम स्कूल को जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। You know, when I was in my teenage, जब मैं अपने टीनेज के टाइम पे था I was working for a construction company. और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं उस समय काम कर रहा था। And so I would go in the construction site. तो वहाँ उस जगहों में मैं जाता था उस समय। And so the afternoon I could not come home for lunch. तो उस समय मैं दोपहर के टाइम पे मैं खाना खाने के लिए So I जाता had to carry my lunch from my home. तो अपने घर से मुझे अपने लंच को लेकर जाना होता So था। I remember a big tiffin I had bought. तो मुझे पता बहुत ही एक बड़ा टिफिन था उस समय में लेके आया। And my mom would make a lunch for me. और मेरी जो माँ थी वो मेरे लिए खाना बनाती थी। So she will make rice and some vegetable or some fish will be there. और वहाँ पे राइस रहता था और वहाँ पे कुछ सब्जियाँ कुछ मछली रहते थे। But it was a big tiffin. लेकिन वो बहुत ही बड़ा एक टिफिन था। And the whole tiffin will be packed with rice and vegetable. और पूरा जो टिफिन है पूरे And fish. सब्जी और राइस के साथ भरा हुआ रहता था। And when 1 o'clock will happen,
जब 1 बजता था उस समय I would open up my tiffin मेरे टिफिन को मैं खोलता था उस समय and I would finish all the food. और पूरे जो खाना मैं खत्म कर देता था उस समय। Today I eat only this much, लेकिन आज मैं इतना ही खाता हूँ, right? है कि नहीं? But when I was in my teenage, लेकिन जब अपने टीनेज के टाइम पे जब I could eat that whole tiffin. पूरा टिफिन को मैं खास उस समय If I would put that in a plate, अगर मैं उसको प्लेट में रखता था उस it was समय like 3 plate rice, और वो 3 प्लेट का राइस होता था उस समय and I could eat it. और मैं उस समय खा सकता था। Youth. उस समय जवान था। Now that doesn't mean I'm not youth now. इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस समय जवान नहीं हूँ, I'm still strong. मैं अभी भी पूरा स्ट्रांग हूँ। But now I try to take care of my health and not to fill my stomach with a lot of rice. लेकिन इस समय अपने शरीर को मैं इस समय टेक केयर करता हूँ। But when I was in my teenage, लेकिन जब मैं अपने टीनेज के टाइम समय I didn't worry about my health मैं अपने हेल्थ के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, because I would run and do so much of activity physically. लेकिन उस समय मैं दौड़ता था और बहुत सारे कुछ करता था। मैं So उस no समय, matter how much I eat, चाहे जितना भी मैं खाऊं, it will digest somehow, somewhere. और उस समय वो हजम हो जाता था कैसे भी, And I would rejoice because I could eat. और क्योंकि मैं बहुत खाता इसलिए मैं उस समय आनंदित मनाता था। Those days were amazing. वो जो दिन थे वो बहुत ही अच्छा था। You remember those days क्या वो समय को आप याद करते हैं when you would go into the jungles? जब आप जंगल की ओर जाते थे? When I was a small little kid, जब मैं बहुत ही छोटा था उस समय, those mountains had no houses at all. और उस पहाड़ में कोई ऐसे घर नहीं थे उस It समय, was all mountain. और वो बस पहाड़ ही था। Back up here, all jungles. और इस समय पीछे की ओर भी पहाड़ था, There were जंगल no था। electricity. और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं There था, were no houses. और कोई घर भी नहीं था, There were just few houses up here. और कुछ घर थे वहाँ पे, Everything was dark. सब कुछ अंधेरा था उस समय। But we would go up to the लेकिन mountains. हम पहाड़ में जाते थे उस समय। We could hear the fox and the wolves making noise in the night. उस समय हम रात को लोमड़ी की आवाज सुनाई देते थे हमें, We could hear many animals in the और night. बहुत से जानवर की आवाज को हम सुनते थे उस There were समय। many cobras in the और jungles. बहुत से कोबरास था उस जंगल में, But we never got scared. लेकिन हम कभी भी डरे नहीं उस समय। We would walk through the jungles. लेकिन हम जंगल की ओर हम चलते थे उस समय। Now when the cobra comes inside the लेकिन जब कोबरा इस समय आते हैं, मैं बहुत डरता we are so scared. हूँ। डर जाते हैं इस समय, Those were the days we were not afraid. लेकिन वो समय हम डरते नहीं थे। In thy youth, rejoice. और अपने जवानी में तुम आनंदित मनाओ। Nothing made us worry those days. और कुछ समय कुछ भी चीजें हमें चिंतित नहीं। That's what God's word says. और वही परमेश्वर के वचन हमें कहता है, Rejoice now. इस समय तुम लोग आनंदित मनाओ। Enjoy your life इस now. समय तुम लोग आनंदित मनाओ। Do whatever you want to do now. चाहे कुछ भी तुम लोग करना चाहते करो, Everything सब कुछ, with joyfully. और पूरे आनंद के साथ। The Bible says, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. कहता है, हे जवान अपने जवानी में आनंद करो और अपने जवानी के दिनों में मगन रहो। Walk in the ways of thine heart. अपनी मनमानी करो, अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चलो। The Bible says, whatever your heart tells you, do it. जो कुछ भी तुम्हारा हृदय कहता है तुम करो, Whatever you want to do, do it. जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो। But you know what fools will say? लेकिन आपको पता है जो मूर्ख आदमी क्या कहेंगे? Wow, I can do whatever my heart says. देखो मैं मेरे हृदय जो कुछ कहता है मैं कर सकता हूँ, I will go and do every evil thing. और जाकर मैं सब कुछ बुरे काम को मैं करूंगा। You see, that is what a fool does. और वही एक मूर्ख व्यक्ति करता है। But a real wise youth लेकिन जो एक पूरे ज्ञानी व्यक्ति जो होते will हैं, say, wow, in this day of my life, I'm going to do whatever my heart says. और लेकिन हम लोग कहेंगे कि इस जवानी के समय में मेरे हृदय जो कुछ कहता है मैं करूंगा। Which means I'm going to use my strength for God. इसका मतलब मैं अपने सामर्थ को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। I'm going to use all that I have for the Lord. जो कुछ भी मेरे पास है मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। I'm going to enjoy my life. मेरे जीवन को मैं आनंदित मनाऊंगा, I'm going to enjoy for the Lord. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आनंदित रहूंगा। And so the young person who is wise और जो जवान जो व्यक्ति जो ज्ञानी है will use his strength to live a holy और life अपने सामर्थ को लोग परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करेंगे and serve the और Lord परमेश्वर की सेवा करेंगे and glorify the और Lord प्रभु को महिमा को देंगे and use his young life to praise his holy और name. अपने जवानी के समय वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे Will spend time in rejoicing in और Christ. यीशु मसीह में आनंदित मनाने में वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगे He will use his strength to say no to sin. और वो कहेंगे कि वो पाप नहीं करेंगे। Oh, my dear friend, in this age, when you are young, you need to
Do all that your heart says in worshiping God. मेरे प्रियो, ये समय में, जवान के समय जो कुछ आपकी हृदय कहता है आपको करना चाहिए परमेश्वर की महिमा देने के The लिए। Bible says, let thy heart cheer thee in the days of thy youth. और कहता है जवानी के दिन में तुम्हारे मन मगन रहे And walk in the ways of thine heart, और अपनी मनमानी करे and in the sight of thine eyes. और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। What is actually your heart and your eyes says now? और आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो हृदय उस समय, इस समय क्या कहता है? Is it talking about all sinful, wicked things? क्या तुम्हारे जो हृदय वो पूरे पाप के बारे में बता रहे हैं? Maybe. शायद, Because there is temptations in life. क्योंकि जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं हैं And we all have temptations. और हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं। We all want to do what Bollywood stars are doing. और बॉलीवुड स्टार लोग क्या करते हैं, हम भी उसको करना चाहते हैं। We think they are happy. हम सोचते हैं कि वो लोग बहुत ही खुश हैं, But every day you read somebody is committing suicide. लेकिन हर दिन आप पढ़ते हैं कि कोई ना कोई आत्महत्या कर रहे हैं Or somebody is murdered. और किसी का हत्या हो गया Or they are caught in drugs. और हम लोग ड्रग्स में उन लोगों को पकड़ लिया उन लोग। Or they marry and divorce, marry and divorce, marry and वो लोग divorce. शादी करके उन लोग डिवोर्स और तलाक ले लेते हैं। ऐसा Is that life that you want to live? क्या उस प्रकार से आप जीना चाहते हैं? That is not the life that God wants you to live. वो जीवन नहीं है कि जो परमेश्वर चाहते हैं हमें जीने। That is not what your heart should be telling you. तुम्हारे जो हृदय वो उस प्रकार से आपको नहीं कहना। Yes, there may be temptations. हाँ, बहुत सारे परीक्षाएं होंगी आपके जीवन But में। don't let your heart go into that direction. लेकिन उस दिशाओं की ओर आपके हृदय को जाने मत देना। Use your heart in the direction of God. लेकिन परमेश्वर की दिशाओं की ओर आपके हृदय को आप अगुवाई करिए। In this age, my dear friend, you should become passionate about God. ये उम्र में आपको परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा जोशीला होना चाहिए। A lot of people say, oh, now I'm 13, 14, 15, 16, 17, 18. बहुत से लोग कहेंगे मैं इस समय 13, 14, 15, 16, 17। Oh, I'm 20, 21. मैं इस समय 21, 22 हूँ I need to find a boyfriend. और मुझे इस समय बॉयफ्रेंड ढूंढना है। I need to find a इस girlfriend. समय गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। I need to do this and that. मुझे ये करना है, वो करना है। You know what happens? क्या आपको पता है क्या होता है इस समय? Instead of enjoying your life, और खुशियाँ मनाने के बावजूद you're hurting your feelings. आप क्या करते हैं, अपने जो फीलिंग्स को आप उस समय हर्ट कर देते हैं। Oh, he did not message me. और उसने मुझे मैसेज नहीं किया Oh, she did not smile at me. और वो मेरे से मुस्कुराई नहीं। Oh, I thought he loves me. मुझे लगता था वो मुझसे प्यार करते हैं। Look, he's talking to another girl. देखो वो दूसरे लड़के से वो बात कर रहे हैं। Arey, I thought she likes me. मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करते हैं, But she's chatting with other boys. लेकिन देखो दूसरों के साथ वो चैटिंग कर रही है And then you don't eat your food. और उस समय आप खाना नहीं खाते हैं, You go to sleep. आप सोने जाते हैं, But you cannot sleep. आप सो भी नहीं पाते हैं Your heart is broken. और आपकी हृदय टूट जाता है उस Your समय। feelings are hurt. अब उस समय आप पूरा दुखी हो जाते हैं। Is that joy? क्या वो आनंदित है? That is lafra. वो लफड़ा है उस समय That is not joy. और वो खुश नहीं है। This is not the time to spend time about thinking about boyfriend and और girlfriend. ये समय नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना। This is the time to enjoy life. लेकिन ये जीवन को खुश में जीने के लिए समय है This is the time to explore the world. और ये पूरे संसार में एक्सप्लोर करने का समय है। When you give your heart to somebody too early, जब तुरंत अपने हृदय को किसी को दे देते हैं, then you cannot enjoy life. उस समय आप खुश आनंद नहीं मना पाएंगे। You become into the jail. और उस समय आप जेल में बंद हो जाएंगे And then you look at other girls. और आप दूसरे लड़के को देखेंगे, Say, oh, they are enjoying life. देखो उन लोग बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं, They are like free उन birds. लोग पक्षी के जैसा है। Those boys, they are enjoying. लड़के लोगों को देखो उन लोग आनंदित मना They रहे are हैं, like free birds. उन लोग पक्षी जैसा है। What did I do? मैंने क्या किया? Why did I give my heart to क्यों him? मैंने अपने हृदय को उनको दिया? Why did I give my heart to her? क्यों मैंने अपने हृदय को उन्हें दिया? Now, if you have given, don't break it. अगर आपने ऑलरेडी दे चुका है तो इसमें होने की जरूरत नहीं। Do it for the Lord. परमेश्वर की महिमा के लिए करो, Don't ruin your life. अपने जीवन को नष्ट मत करो। But my dear friends, लेकिन मेरे प्रियो, this is the age you enjoy. लेकिन ये जो समय है आनंद मनाना है आपको, Cheerfully, the Bible says. पूरे आनंद के साथ, खुशियों के साथ, There should be joy on your face all the और time. आपके चेहरे में हमेशा आनंदित दिखना चाहिए। It's not, you should not be going to sleep. Oh man. आपको उस प्रकार से जब आप सोने के लिए आते हैं उस प्रकार से नहीं सोना है, दुखी होकर, All the time headache. हमेशा सर दर्द। You want to have Action 500. Action 500. इस समय आप ज्यादा उससे चाहते हैं पैसों की, टेबलेट का नाम है भाई. इस समय आप टेबलेट चाहते हैं और उसको आप समय Vicks Action 500 is for headache. और वो जो दवा है वो हेडेक के लिए है।
But that is the truth, dear friend. लेकिन वही सच्चाई है। This is the time to enjoy life. लेकिन ये जो समय है आनंद मनाना है आपको। Give your time for और God. अपने समय को परमेश्वर को दें। Be, this young time, you need to be spending time like finding God's will. और इस समय ये जवान के समय आपको परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना चाहिए। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, He did not go around looking in the garden for another woman. और वो जाकर दूसरे बगीचा में जाकर वो अलग औरत को देखने के लिए नहीं गया। God made Adam to sleep लेकिन परमेश्वर ने आदम को सुलाया and brought Eve in front of him. और हवा को आदम के सम्मुख लेके आया। We read about Isaac. और हम इसहाक के बारे में पढ़ते When हैं। Isaac was at the age of marriage, और जब इसहाक शादी की उम्र में थे, the Bible says he was in the field praying to God. हम देखते हैं बाइबल बताते हैं कि जो इसहाक वो उस समय फील्ड में था, प्रार्थना कर रहे थे। He was not sending a message on the messenger, hello, you're beautiful. और मैसेंजर में उस समय मैसेज नहीं कर रहे थे कि है खूबसूरत। But he was, I'm not saying it's wrong, but he was in the field praying to God. लेकिन वो उस समय खेती में खुले मैदान में वो उस समय प्रार्थना कर रहे थे। He was praying for a life partner. और वो जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर And रहे the थे। Bible says when he went in the evening to pray, और हम देखते हैं जब वो शाम को जाते हैं प्रार्थना के लिए, from there sitting in a camel came Rebecca. और हम देखते हैं वहाँ पे ऊँट में बैठकर एक रेबिका आती है। See, Isaac did not go searching for Rebecca. और इसहाक जाकर ढूंढने नहीं लगा रेबिका को, God brought Rebecca to Isaac. लेकिन परमेश्वर ने रेबिका को इसहाक के पास लेकर आया। Rebecca did not go seeking for Isaac. और रेबिका ने भी आइजक को ढूंढते हुए नहीं आई वहाँ पे। When Rebecca was at the marriage age, लेकिन जब रेबिका को शादी की उम्र हुई थी, she was working for her father in the house. और अपने पिता के लिए वो काम कर रही थी। The Bible says Rebecca was working in the well, fetching water. और हम देखते हैं वहाँ पे वो काम कर रही थी, कुआं से पानी निकाल रही थी उस समय। And that is the time where Abraham's servant found Rebecca. और उस समय अब्राहम की जो सेवक थे उन लोग ने रेबिका को पाया। And he brought Rebecca to Isaac. और उन्होंने रेबिका को इसहाक के पास लेकर आया। That's a picture of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का एक छवि को दर्शाता है। God's people. परमेश्वर के लोग। This is the age. और यही समय है that you use your age to enjoy your life. अपने समय को इस्तेमाल करते हैं आनंद मनाने के लिए। Explore your life. और अपने जीवन को पूरे आप प्रकाश कर दो। Play sports. और उस समय आप खेलो। Enjoy. और आनंदित मनाओ। Gather more knowledge. और ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करो। And do everything your heart says for the और जो Lord. कुछ भी आपके हृदय कहता है परमेश्वर की महिमा के लिए करो। And when the right time comes, जब सही समय आएंगे, when you are ready for marriage, जब शादी के लिए तैयार होंगे, you will see Rebecca coming before you. आप देखेंगे कि रेबिका आपके सम्मुख आ रही हैं। You will see Isaac is waiting for आप you. देखेंगे कि इसहाक तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं। That is God's ways. और वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं। That is how God works. और उसी प्रकार से परमेश्वर काम करता है। And God will bless that marriages. और परमेश्वर वो शादीशुदा जीवनों को आशीष करेंगे। Because God knows better than you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे से भी ज्यादा अच्छा उसको पता है। You don't know what is good. आपको नहीं मालूम क्या अच्छा है। Love is blind. और जो प्यार है वो अंधा है। Actually, love is beautiful. अगर हम देखेंगे तो प्यार बहुत ही खूबसूरत Love है। is not blind. अब जो प्यार है वो अंधा नहीं है। Lovers are blind. और लेकिन जो प्यार करने वाले लोग उन लोग अंधे हैं। Because when they fall in love, क्योंकि जो लोग प्यार में गिर जाते हैं, they fall. उन लोग उस समय गिर जाते हैं। But when you are matured, लेकिन जब मैच्योर बनते हैं उस समय, when you are at that time of marriage, जब शादीशुदा के समय आप उस समय उम्र में हो जाते हैं, you will not fall in love. उस समय आप प्यार में नहीं गिरेंगे, You will stand in love. लेकिन आप प्यार में खड़े उतरेंगे। You will be ready आप उस समय तैयार होंगे and you will be steady और आप उस समय सही समय में होंगे and you will marry. और उस समय शादी करेंगे। But when you are not ready लेकिन जब आप तैयार नहीं हैं, and when you are not ready, steady, उस समय आप सही में नहीं हैं, then you will fall in love. उस समय आप प्यार में गिर जाएंगे। What does fall in love mean? और प्यार में गिरना मतलब क्या है? Ruining life, जीवन को नष्ट कर देना taking away your freedom, और अपने फ्रीडम को लेके जाना not बाहर enjoying life. और जीवन को आनंदित नहीं बनाना Then life becomes boring. और तुम्हारे जो जीवन है वो बोरिंग हो जाएगा। What God wants you today is, लेकिन परमेश्वर आज क्या चाहता है? God wants you to enjoy life. परमेश्वर चाहता था कि तुम अपने जिंदगी को खुशियों से मतलब एंजॉय करो। Do whatever you want to do. जो कुछ तुम करना चाहते हो करो। Do whatever your heart says. तुम्हारे लिए जो कुछ कहता है करो। Whatever your eyes says. तुम्हारे जो नजर है वो जो कहता है करो। And finally Bible says, और अंतिम में बाइबल कहती है, but know thou लेकिन तुम जानो that for all these things, लेकिन ये जब सब कुछ चीजें जो है God will bring thee into judgment. परमेश्वर सब कुछ न्याय में लेके आएगा और न्याय करेगा। So God wants you to enjoy life.
परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन को आनंदित में मनाओ, But if you enjoy life in the wrong ways, लेकिन अगर आप गलत दिशाओं में अपने जीवन को बिताते हैं in the sinful path, और पाप भरे हुए मार्ग में, then the Bible says God will judge you. बाइबल हमें बता देगा परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, God will judge you for your sin. तुम्हारे पाप के लिए परमेश्वर तुम्हें न्याय करेगा। But if you use your youthful life लेकिन अपने जवानी के समय को अगर आप इस्तेमाल करते हैं for the glory of God, परमेश्वर की महिमा के लिए, and in fact, if you're in a relationship अगर now, तुम्हारे रिलेशनशिप में इस समय आप हैं, if you have a girlfriend or a अगर boyfriend, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, you must pray for them. आपको क्या करना है, इस समय प्रार्थना करना है And you need to hide yourself in the heart of God. और परमेश्वर के हृदय में आपको खुद को छिपना है। It is not wrong to have a girlfriend or a boyfriend. गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होना ये गलत बात नहीं है, It is a good thing. और ये अच्छी बात है, But it is a good thing if it is in the will of God. लेकिन ये अच्छी बात है अगर ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। Which means your relationship should be built upon the word of God. इसका मतलब तुम्हारे जो रिश्ता है वो परमेश्वर की वचन के ऊपर वो बनना चाहिए। Don't make a boyfriend who goes and worships idols, और उस प्रकार का बॉयफ्रेंड बना जो जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, or a girlfriend who goes and worship any other cows and dogs. और जो लड़की दूसरे भगवान को जाकर पूजा करते हैं। Find someone that loves Jesus Christ, लेकिन उस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, who loves the word of God, जो परमेश्वर के वचन को प्यार करते the हैं, one who can come and worship with you in the house of God. जो कोई आकर यहाँ पर परमेश्वर की आराधना सेवा कर सकते हैं, Not some Humpty and Dumpty, और जो कुछ ऐसे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं, but a man of God, लेकिन परमेश्वर की जो लोग हैं उनको, a woman who loves God, उस स्त्री जो परमेश्वर से प्यार करती a है, man who loves God. उस मनुष्य जो परमेश्वर से प्यार रखता है। Remember one thing, आपको एक याद करना है, if a girl does not love God, अगर एक लड़की परमेश्वर से प्यार नहीं करती है and she will not be in the house of God, और वो परमेश्वर के भवन में नहीं आती है and she will not spend time in the word of और God, परमेश्वर के वचन में अपने समय को गुजारेगी नहीं, she will not love you. और वो आपको प्यार नहीं करेंगी। And if you find a man who does not love God, अगर ऐसा व्यक्ति को अगर आप पाते हैं जो परमेश्वर से प्यार नहीं रखते who हैं does not love the church, और कलीसिया को वो प्यार नहीं करते हैं, who does not pray and read the जो Bible, प्रार्थना नहीं करते, वचनों को पढ़ते नहीं है, he will not love you. वो आपको प्यार नहीं करेंगे He will cheat you, और आपको वो धोखा देंगे he will hurt you, और आपको वो दुख देंगे he will ruin your और life. आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। You need to pray to God now. आपको इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना I चाहिए। told you about a story about a great man of God. और मैंने एक अच्छा परमेश्वर की दास के बारे में मैंने आपको एक कहानी सुनाया I'll था tell this story and finish this. और मैं कहानी को सुनाकर यहाँ पे समाप्त करूंगा। A great man of God. एक परमेश्वर की दास, He had a 5-year-old daughter. और उसके पास एक 5 साल की बेटी थी। And you know what he would do? क्या आपको पता है वो क्या करते थे उस समय? Every evening he will take his daughter for a walk. हर एक शाम को अपनी बेटी को लेकर जाते थे चलने के लिए। And when he would take his daughter for a walk, they will pray together and they will sing and they will celebrate and rejoice. जब वो शाम को चलने के लिए जाते थे अपनी बेटी को लेकर, वो क्या करते थे उस समय? गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे, आनंदित मनाते थे। And those were mountains, huge mountains. और वहाँ पे पहाड़ थे। And this great man of God, this preacher would tell his daughter, और ये परमेश्वर की जो दास है अपने बेटे को कहता था उस समय, a 5-year-old daughter, और 5 साल की जो बेटी उसका, and he would say, sweetheart, और वो कहते थे, स्वीटहार्ट कहती, beyond that mountain, उस पहाड़ के उस पार God is preparing a prince for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए एक राजा को तैयार कर रहे हैं, Because you are a princess. क्योंकि तुम एक रानी हो। But if you want to find that prince at the right time when you grow up, जब तुम बड़ी हो जाओगी, अगर तुम्हें सही समय उस राजा को प्राप्त करना है, today you need to pray to God every आज day. तुम्हें परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना है। You need to start praying to God now. तुम्हें इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, इसी समय। Oh God, हे परमेश्वर, help me मुझे मदद करें to keep my life holy and pure. और मेरे जीवन को पवित्र रखने के लिए, So when I grow up, जब मैं बड़े हो जाऊंगा, I may find the prince that you are preparing for me. ताकि उस राजा को, ताकि मैं प्राप्त कर सकूं जो राजा को तूने मेरे लिए तैयार किया है। Keep your life pure. तुम्हारे जीवन को शुद्ध रखो, So God will bless you with a good relationship. ताकि परमेश्वर अच्छा रिश्तों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। You need to use your body for the glory of God. तुम्हें अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है।
Every man wants to enjoy woman before the marriage, और हर एक पुरुष जो है वो उन लोग आनंदित मनाना चाहते हैं शादी से पहले, but he only wants to marry a pure woman during the marriage. लेकिन शादी के समय वो केवल एक जो शुद्ध औरत है उसको शादी करना चाहते He हैं। may want to watch, or he will want to enjoy all the women before he marries. शायद वो शादी करने से पहले सब औरत के साथ वो एंजॉय करना He चाहते may हैं, look like the most godly man, but that's what his heart wants. लेकिन वो शायद बहुत अच्छा व्यक्ति दिखेंगे, ईश्वरीय व्यक्ति, लेकिन वो उसकी हृदय वही चाहता है। But when he marries, लेकिन जो वो शादी करता है, oh, he wants 100% pure. लेकिन उसको पूरा 100% वाला प्योर चाहिए रहता है, That is what man wanting. और वो ये पुरुष चाहता है। But in a Christian life, लेकिन एक मसीही जीवन में every man should keep his body pure. हर एक जो पुरुष है अपने शरीर को उसको शुद्ध रखना है। When you keep yourself pure, जब तुम अपने आप को शुद्ध रखोगे, God will provide you a pure woman. परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा स्त्री को जो शुद्ध है उसको तुम्हें प्रोवाइड करेगा। If a woman will keep your body pure, अगर एक जो स्त्री अपने शरीर को शुद्ध रखता है, God will provide you a pure man. परमेश्वर एक अच्छा पुरुष को तुम्हें प्रोवाइड करेगा। But if you will fornicate with any man अगर तुम हर किसी के साथ अगर तुम विचार करते हो and with any woman, और हर एक स्त्रियों के साथ, that's what you will get when you get और married. जब तुम शादी करोगे वही उसी प्रकार का तुम्हें व्यक्ति मिलेगा And तुम्हारे there will जीवन में। be doubts, और बहुत सारे संदेह आएंगे उस समय, fights, और झगड़ा होंगे, divorce, और तलाक भी होंगे, issues, और बहुत से समस्याएं होंगी, and the blessings may not be there. और आशीषें भी नहीं रहेंगी आपके जीवन में। But how wonderful is our God? लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, He is a forgiving God, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, and He can transform the life. और हमारे जीवन को बदल सकता है। Every sinful person, when he comes to God, God will make him whiter than snow. जब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद बन जाता है। God forgives all your sins. परमेश्वर तुम्हारे हर एक पाप को क्षमा कर देता है, God washes you whiter than snow. और परमेश्वर तुम्हें धोकर बर्फ से ज्यादा सफेद बना देता And है, God forgets all your sins. और तुम्हारे हर एक पापों को परमेश्वर भूल जाता है, And in the eyes of God, you become a brand new person. और परमेश्वर की दृष्टि में तुम एक नया व्यक्ति बन जाओगे। So keep your body clean. और तुम्हारे शरीर को तुम शुद्ध रखो, Keep your body pure. तुम्हारे जो शरीर है उसको शुद्ध रखो तुम। Every man should keep his body for his wife that he's going to marry. हर एक जो पुरुष है अपने शरीर को तुम्हें शुद्ध रखना है, जो जिनके साथ तुम शादी करने वाले हो। Every young girl should use your body to keep yourself pure for the man that you're going to हर marry. एक लड़कियां जो है अपने शरीर को तुम्हें शुद्ध रखना है जिसके साथ तुम शादी करने वाली हो। Today's world is very evil. हम देखते हैं आज की जो संसार है बहुत ही बुरा है। Today when you go to college जब कॉलेज को जाते हैं and your friends will ask you, are you a virgin? और तुम कहेंगे क्या तुम कुंवारी हो, And if you say, yes, I'm a virgin, अगर तुम कहेंगे हाँ मैं हूँ, they laugh at you and mock at तो you. तुम उन लोग क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। Oh, you never had sex? क्या तुम कभी गलत संबंध नहीं बनाया, Oh, you are a failure. तुम कुछ काम का नहीं। But that's what the world is teaching you. लेकिन वही संसार आज तुम्हें सिखाते But हैं। you know what God says? लेकिन आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है, Keep your body pure. तुम्हारे जो शरीर को शुद्ध रखो, Keep your body pure. तुम्हारे शरीर को शुद्ध रखो, Because unwanted sex can bring many physical diseases into your life. क्योंकि अगर तुम गलत संबंध को रखते हो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग बीमार को पैदा कर सकता है। Did you know 90% of the Bollywood stars and Hollywood stars have AIDS? और आपको पता है बहुत से 90% लोग जो बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, उन लोग के अंदर एड्स है, Sexually transmitted diseases. और जो सेक्स करने के दौरान उनके अंदर आया है वो बीमार, Because they think, haha, it's a fun. क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही मजा की बात है, It's God's judgment. ये परमेश्वर की न्याय है। Diseases. और ये जो बीमार, Keep yourself pure. अपने आप को तुम शुद्ध रखो, Don't fall for your friends' advice. और तुम्हारे जो दोस्तों की जो एडवाइस वगैरह हो उसमें मत तुम गिरो। Don't compromise your life because your friends want you to compromise. और तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे बंधु ने कहा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, इसलिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। You are unique. तुम अलग प्रकार के व्यक्ति हो, God created you unique. परमेश्वर ने तुम्हें यूनिक बनाया है। God created you not for you but for Him. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खुद के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर अपने लिए बनाया है So तुम्हें। remember thy Creator. Remember now thy Creator in तो the इसी days of समय thy youth. तुम्हारे सृजनहार को तुम स्मरण करो, Enjoy your life. अपने जीवन को तुम आनंदित बनाओ, Enjoy your life for Christ. और परमेश्वर की महिमा के लिए तुम आनंद मनाओ। Do all that you want to do for Christ. जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Don't ruin your life. अपने जीवन को तुम नष्ट मत करो, It will destroy you. तो
तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। It will be a stain. When I was a little boy, जब मैं छोटा एक बच्चा था उस समय, I went up there to steal cashew in one house there. और वहाँ पे काजू वगैरह में चोरी करने के लिए वहाँ पे गया। I don't know if you know, there was a man called Surlikar. और वहाँ पे उस एक Sheila व्यक्ति था, knows. There was a guy called Surlikar, the old man. और एक बहुत ही मतलब उम्र के ज्यादा लोग थे वहाँ पे। And inside the compound, he has cashew trees. और कंपाउंड के अंदर उसके एक काजू का एक पेड़ था उस समय। And in that compound, there was viabulbs. और वहाँ पे और काटा. और वहाँ पे कुछ कांटे कुछ चीजें थे वहाँ। On the field they put this bulb wires. जैसे आपको पता है उसके ऊपर एक उन लोग फील्ड में लगाते हैं कांटेदार चीजें। Of the iron, and that has thorns. और लोहे जैसा कुछ कांटे जैसा। So when my mom went to sleep, my brother and I, we went to steal cashew and jamuns. जब मेरी माँ सोने blueberries. जब मेरी माँ सोने के लिए गया तो उस समय मैं और मेरे भाई दोनों हम गए वहाँ पे चोरी करने के लिए। See, I'm confessing all my sins now. मेरे हर एक पापों को मैं इस समय बता रहा हूँ। So everybody is sleeping at that time, 2:30. तो 2:30 बजे उस समय सभी लोग सो रहे थे। Surlikar is sleeping, my mom is sleeping, my auntie is sleeping, everybody is sleeping. इस समय सभी लोग सो चुका होता है। That time, there's no internet, no Facebook, no WhatsApp. इंटरनेट वगैरह कुछ फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था उस समय। So me and my brother, we went with a bag. मैं और मेरे भाई हम बैग लेकर हम गए वहाँ। We both entered into the compound. और कंपाउंड के अंदर हम दोनों घुसे अंदर। And we removed all the jamuns. और सब जामुन को हमने इकट्ठा किया। Put all the cashews. और सब कैशेस को हमने इकट्ठा किया। And there was one noise that took place. और वहाँ पे एक शब्द वहाँ पे सुनाई दिया हमें। And the dog started barking. और उस समय जो कुत्ता है वो भौंकने लगे। And Surlikar's dog started barking loudly. और ज्यादा कुत्ते भौंकने लगे। And now we need to get out of the compound. कंपाउंड से हमें इस समय बाहर निकलना My है। brother jumped and got out. और मेरे जो भाई वो कूदकर वो बाहर चले गया। I was a small little guy. उस समय मैं छोटा था। I couldn't jump fast. मैं उस समय जंप नहीं कर पाया। And so beyond my brother, I started jumping. और उस समय मैं भी कूदने लगा। And on my left leg, और मेरे जो दाएं पाँव में, while I was jumping, और जब मैं उस समय कूद रहा था, my left leg went right into the barbed wire and had a long scratch. और उस समय मेरे जो पाँव था वो लग गया वो कांटे पे और मेरे यहाँ पे कट लग गया। And such long line. और बहुत ही लंबा एक लाइन बन गया वहाँ पे। And so deep. और बहुत ही घना। The barbed wire right pierced into my leg. और मेरे पाँव में वो बहुत ही बुरी तरीके से कट गया। And tore the flesh out of me. और मेरे जो शरीर वो अलग हो गया मेरे। And blood started gushing out. और उस समय खून बहने लगा। I came home. और मैं घर को आया। And I started crying. और उस समय मैं रोने लगा। Blood is flowing. और जो लहू बह रहे थे उस समय। My mom got up. मेरी माँ उठी उस समय। What do you think my mom would have done? आपको क्या लगता है मेरी माँ उस समय क्या करने वाली? She got a rod and boom, boom. और एक रॉड लेकर आके मारने लगी। And she spanked the hell out of me. और बहुत ही जोर से मारने लगी। In one side I'm bleeding, and other side I'm being spanked. और एक तरफ से खून बह रहा है और एक तरफ से मुझे मार पड़ रहा है उस समय। But till today, लेकिन आज तक that mark is not gone out of my body. वो जो मार्क है वो अभी तक मेरे शरीर में है। I have a huge mark on my left leg. और मेरे दाहिने पाँव में अभी तक वो मार्क है। Sin is like that. और पापी उस प्रकार का है। You will never forget it. आप कभी भी नहीं भूलेंगे। It will always taunt you, hurt you, and it will haunt your life. और हमेशा वो आपको याद दिलाता रहेगा, आपके अंदर वो दबाव आते रहेंगे। It will be like a mirror in front of you. और आपके सामने वो आईने के जैसा रहेंगे। You don't want to live a life like that. आप उस प्रकार से जीवन को नहीं जीना चाहेंगे। Today God had mercy. लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर दया को रखा। And God has spoken some wonderful truths to और you. कुछ सच्चाई को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा। After hearing this, और ये सत्य को सुनने के बाद make a decision. और एक डिसीजन अपने जीवन में I want to enjoy my life today onwards. आज के बाद मैं अपने जीवन को खुशियों के साथ में व्यतीत करना चाहूँगा। I don't want to ruin my life. मैं मेरे जीवन को नष्ट नहीं करना I चाहता don't हूँ। want to go to sleep with my heart broken. और मेरे हृदय टूटा हुआ हृदय को लेकर मैं सोना नहीं चाहता हूँ। I don't want to go to sleep thinking, oh, now he's chatting with other girls, or she's chatting with other boys. I don't want that tension. कि उस व्यक्ति के साथ वो बातचीत कर रहे हैं उस प्रकार का सोच विचार लेके मैं सोना नहीं चाहता हूँ। Sleep peacefully. केवल उस समय बस उस प्रकार के नहीं। Eat healthy. और सही प्रकार से खाना। Enjoy your life. और खुशियाँ मनाना। And if you're in a relationship, अगर आप रिश्ते में हैं, do it in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में सही तरीके से करिए। Do it in a holy life. और पवित्रता में करिए। Spend your time in God's word. अपने समय को आप गुजारिए परमेश्वर के वचनों में।
Spend your time in the house of और God. अपने समय को गुजारिए परमेश्वर के भवन में, Do it for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए करिए Don't live in sin. और पाप में मत जिए, Because the Bible says, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है do whatever you want. तुम जो कुछ भी करना चाहते करो, But at the end of the day, लेकिन अंतिम दिन में judgment is coming. न्याय तुम्हारे में आ रही है। Are you going to be judged for your sin? क्या तुम्हारे पाप की वजह से तुम्हें न्याय होगा, Or are you going to be judged for rewards? क्या या फिर पुरस्कार के लिए तुम्हें न्याय किया If जाएगा? you live a life pleasing the Lord, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने में अगर आप जीवन को बिताते हैं, God will judge you to reward you. लेकिन परमेश्वर आपको न्याय करेगा तुम्हें पुरस्कार को देने के लिए। But if you live in sin, लेकिन अगर आप पाप में जीते हैं judgment. तो उस समय न्याय होगा। Have you trusted Jesus क्या Christ? आपने यीशु को विश्वास किया? Do you believe the Lord Jesus क्या Christ? यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? Do you believe that He is your God, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु आप तुम्हारा who पिता है, became man, जो मनुष्य बना, came into this world and died for your sins संसार में आकर अब तुम्हारे पाप के लिए मरा, by shedding His precious blood, अपने पवित्र लोगों को बहाने के द्वारा was buried and rose again on the third day? को दफना गया, लेकिन तीसरे दिन वापस Do you जी उठा? believe? क्या आप विश्वास करते हैं? Have you received the Lord Jesus? क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है? If you say yes, अगर आप कहते हैं हाँ, then live for Him. तो यीशु के लिए जिए Enjoy your life for Him. और परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को व्यतीत करिए। If you have not trusted अगर Christ, आपने यीशु को अभी तक विश्वास नहीं किया, ask God to forgive your sin परमेश्वर से आप पूछिए ताकि वो आप तुम्हें क्षमा करें and receive the Lord Jesus और Christ यीशु को ग्रहण करिए अपने जीवन में and believe in Him today. और यीशु के ऊपर विश्वास करिए। The rest of your life, और तुम्हारे जो बाकी जो जीवन है, I want you to enjoy मैं Christ. चाहता हूँ ताकि तुम यीशु को तुम आनंदित बनाओ यीशु में। Enjoy your life. ये अपने जीवन को तुम आनंद मनाने में व्यतीत And करिए। if you have boyfriend and girlfriend, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, make it very clear और तुम क्लियर करो उसमें, that if you don't follow Jesus अगर तुम यीशु को नहीं मानते and हो, if you don't come to church, अगर तुम कलीसिया को नहीं आते हो, if you don't spend time in reading and studying God's word, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने में अध्ययन करने में अगर बिताते नहीं हो समय को, you can go on the highway तो उस समय आप हाईवे में जा सकते हैं, because you don't want such relationship. क्योंकि आप उस प्रकार का रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हैं। That will destroy you. उसको तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा, It will destroy you. तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। Whether it's a girlfriend or the boyfriend, चाहे ये गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, make it very clear. और पूरा स्पष्ट बनाइए इसको। If that person will not love Jesus, अगर वो व्यक्ति यीशु को प्यार नहीं करते हैं, that person will not love you. वो व्यक्ति तुम्हें प्यार नहीं करेंगे कभी भी। You need to spend your time loving Jesus लेकिन आपको समय को गुजारना है यीशु को प्यार करते हुए, and see that they love Jesus. और आपको देखना है कि उन लोग यीशु को प्यार करते हैं। Amen. आमीन। The one who loves Jesus will love you. जो यीशु को प्यार करते हैं वो तुम्हें भी प्यार करेगा। The one who doesn't want to love Jesus, जो यीशु को प्यार नहीं करना चाहते the हैं, one who doesn't want to be in the house of God, जो यीशु के भवन में नहीं रहना चाहते हैं, the one who doesn't want to talk about Jesus to you, जो कोई यीशु के बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, will not love you. वो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा। Ruin your life. तुम्हारे जीवन नष्ट हो जाएगा। What do you talk about? आप किसके बारे में, किस टॉपिक के ऊपर आप बातचीत करते हैं? When you are sitting and talking, what do you talk about? जब आप बैठकर आप बातचीत करते हैं, उसमें आप क्या बातचीत करते हैं? Turn it. उसमें आप बदल दीजिए, Turn it to be holy. और उसमें आप पवित्रता में बदल दीजिए, Turn it about what you're going to do for the Lord. और आप यीशु के लिए क्या करना चाहेंगे, Because that's the only life that will make you happy the rest of your life. क्योंकि वही जो तुम्हारे जीवन को हमेशा खुशियों से भर सकता है। If God can bring my wife all the way from America to India, अगर मेरी जो पत्नी है उसको अगर अमेरिका से लेके आ सकते हैं if परमेश्वर, God can bring Rebecca to Isaac, अगर परमेश्वर रेबिका को इसहाक के पास लेके आ if सकता है, God can bring Eve to Adam, अगर परमेश्वर हवा को आदम के पास लेकर आ सकता है, if God can bring Jacob for Rachel, अगर परमेश्वर याकूब को रेचल के लिए लेके आ सकते हैं, if God can bring all these people for His people, अगर परमेश्वर ये सब लोगों को अपने लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं, trust in God. तो यीशु के ऊपर भरोसा करो, Because God has the best thing for your life. क्योंकि परमेश्वर के पास सबसे अच्छा चीज है तुम्हारे You know, the enemy of the best is the better. आपको पता है जो दुश्मन की जो सब चीजें सबसे अच्छी बात है, The enemy of the best जो दुश्मन की जो सबसे अच्छी चीज है is the better. वो सबसे अच्छा है। Better is not good. जो अच्छा है वो अच्छा नहीं है, जो सही है वो अच्छा नहीं है, Best is good. लेकिन सबसे जो बेहतर वो अच्छा है। And God wants to give you the best. लेकिन परमेश्वर सबसे बेहतर का आपको देना चाहता है, Satan wants to give you the better thing. लेकिन जो शैतान है आपको उससे भी ज्यादा अच्छा मतलब देना चाहेंगे ऐसा कुछ।
It's like iPhone. और हम देखते हैं आईफोन। This is Pastor, this iPhone. I like this. और आप कहेंगे हाँ पाशा मुझे ये पसंद है आईफोन। But the iPhone, my screen is gone. लेकिन ये जो आईफोन का स्क्रीन जा चुका है। This is not good. ये अच्छा नहीं है इस समय। The photo doesn't come out good. और एक मोबाइल अभी अच्छा नहीं है। The video doesn't come out good. और वीडियो वगैरह भी अच्छा नहीं आता है। This is a better thing. और ये अच्छा चीज़ है लेकिन। But I have a best thing. लेकिन मुझे सबसे बेहतर चाहिए। The one that is recording me is the best. जो इस समय रिकॉर्ड हो रहा है वो सबसे बेहतर है। It's the best thing. सबसे बेहतर है। It's 10 times better than this. और ये 10 गुना ज़्यादा उससे भी बेहतर है। But a lot of people are settling for these. लेकिन बहुत से लोग इसके लिए वो लोग बता रहे हैं। No video proper. वीडियो वगैरह अच्छे तरीके से नहीं चलता है। Black and white. और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। Screen is gone. और स्क्रीन भी जा चुका है। And a lot of people want the better thing of the devil. और लेकिन बहुत से लोग शैतान की अच्छाई को चाहते हैं। But God has the best. लेकिन परमेश्वर के पास सबसे बेहतर है। Do you want the best or the better? क्या आप अच्छा चाहते हैं या फिर बेहतर चाहते हैं? If I was you, I would say, I want the best. अगर मैं जवान होता तो मैं कहता कि मुझे सबसे बेहतर वाला चाहिए। Shall we pray? इस समय हम प्रार्थना करें। Oh God, हे परमेश्वर, we thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं for this message today. और ये मैसेज के लिए मुझे आपको धन्यवाद करते I हैं। pray that thou will bless the young people. मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जवानों को आशीष करने के लिए। Help them to make the right decisions for their life. सही कदमों को देने के लिए उन लोगों को मदद करें प्रभु जी। Oh God, हे परमेश्वर, help them not to ruin their life. आप मदद करें ताकि उन लोगों के जीवन अपने आप को नष्ट ना करें। Help them not to live in sin. उन लोगों को मदद करें ताकि उन लोग पाप में ना जिए प्रभु जी। Help them, O God, उन लोगों को मदद करें पिता, to make decision according to your word ताकि सही कदम को आपके वचन के अनुसार ताकि उन लोग ले सके। that will bring glory and honor to thy उन लोग name. आपकी महिमा, आपके नाम में महिमा लेकर आ सके प्रभु जी। Help them to enjoy life. उन लोग को मदद करें ताकि उन लोग आनंद मना सके प्रभु जी। Give them good health. उन लोग को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। Oh Lord, bless each and everybody right now. हर जनों को प्रभु जी इस समय आप आशीष करें। You'll put an edge of protection उन around लोग them. को रक्षा करके रखें प्रभु जी। Oh Lord, we pray that nobody will online and watching online or right now in the church, nobody will get coronavirus. हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे इस समय ऑनलाइन में देख रहे हैं, जितने सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि किसी के जीवन में कोरोना वायरस ना आ सके। Lord, wash and sanctify everybody. सभी को धोए प्रभु जी, सभी को शुद्ध करे प्रभु जी। And oh Lord, sanitize them with your faith, oh और God. आपकी विश्वास के द्वारा सभी को सैनिटाइज करे प्रभु यीशु। Lord, we pray. हम प्रार्थना करते हैं You पिता, will provide all their needs. उन लोग के हर एक जरूरत को पूरा करें प्रभु जी। Strengthen them. उन लोग को सामर्थ्य दे पिता, Bless them. उन लोग को आशीष करे प्रभु जी। And oh Lord, we give you all the glory and और honor. सारा धर्म हम आपको देते हैं प्रभु, We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं। And all God's people said, Amen. and again, Amen. and again. Amen. Amen. God bless you.